प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। दोस्तों, हमारे डाइस पर एक ऐसी बावकार शायरा मौजूद है जिसने अपने तरन्नुम और तगज़्ज़ुल और गज़लों को और गीतों की ताजगी की बुनियाद पर शोहरतों और मकबूलियतों की बुलंदी पर वो पहुंच चुकी है। मैं यूनाइटेड किंगडम में मुकीम सुल्ताना मेहर के इन शेरों से मोहतरमा अंजुम रहबर को आवाज दे रहा हूं कि जो दानिश्वर खजा को बांझ कहते थे वो झूठे थे। खजा का आईना टूटा तो हर किरची में बूटे थे, और यहीं झुलसे बदन चटके यहीं प्यासों ने जान दी थी। इसी सहरा में आबे सर्द के चश्मे भी फूटे थे। तुम्हें इनकार गुलशन में कदम तुमने नहीं रखा, मैं कैसे मान लूं कलियां गलत थी फूल झूठे थे। मोहतरमा अंजुम रहबर माई पर एक मतलब 2 शेर सुनेगा। चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। अर्ज करती हूँ ये शेर। अपने घर में हूँ चारों तरफ आईने, गजल का शेर। अपने घर में हो चारों तरफ आईने, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे। और ये शेर अंजुम पढ़ती है महाभारत से लेकर रामायण से लेकर महाभारत तक। किसी भी मजहब की बात करें, औरत औरत है। ये शेर सुनाती हूँ। मैं तुम्हारी नजर मैं तो एक खेलू हूँ, सुने। मैं तुम्हारी नजर में तो एक खेलू हूँ, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, चाहे जीतो मुझे
چاہے ہارو مجھے زندگی ہوں تمہاری گزارو مجھے. اس کے بعد سیدھے سیدھے ایک غزل کے چند شعر آپ کو سنانا چاہتی ہوں. غزل کا مطلب سماعت فرمائیے. اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری، اور تو کچھ بھی نہیں پاس نشانی تیری. دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری، دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری. میں محسوس کر کے میں نے شعر لکھے تو آپ بھی ذرا احساس کو زندہ کیجئے. دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری. اب یہ شعر میں کس کو نظم کرنا چاہتی ہوں، کہاں تک پہنچانا چاہتی ہوں، آپ سمجھیں گے. لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں. شعر سنیں. لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں، لڑکیاں اور بھی منسوب تیرے نام سے ہیں. کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری، کیا کوئی میری طرح بھی ہے دیوانی تیری. اور شعر سناتی ہوں. میں اگر ہونٹ بھی سی لوں تو میری خاموشی، میں اگر ہونٹ بھی سی لوں تو میری خاموشی، میں اگر ہونٹ بھی سی لوں تو میری خاموشی ساری دنیا کو سنا دے گی کہانی تیری، ساری دنیا کو سنا دے گی کہانی تیری. اور انجم کے یہ دو شعر آپ سب کو نظم کرتی ہوں. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. کھنڈوا والوں شعر نظم کرتی انجم. راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ، راج محلوں میں کنیزوں کا رہا ہے قبضہ. اور جنگل میں بھٹکتی رہی رانی تیری، اور جنگل میں بھٹکتی رہی رانی تیری. اور یہ شعر محترم حنفی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بہت ڈرتے ڈرتے پڑھتی ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. سنے گا شعر. میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا، میرے پھولوں میں مہکتا ہے پسینہ تیرا. میرے ہاتھوں میں کھنکتی ہے جوانی تیری، میرے ہاتھوں میں کھنکتی ہے جوانی تیری. دیکھتی رہتی ہوں تصویر پرانی تیری. انجم کا یہ گیت آپ سب کو نظم کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے گا. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان. ہندوستان کی بات کر رہی ہوں میں. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان. یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان. یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان. جینا ہے دشوار یہاں پر. اب پہلا بند، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندی ہندوؤں کی زبان ہے اور اردو مسلمانوں کی زبان ہے، نہیں نہیں، میں کہتی ہوں کہ اردو محبتوں کی زبان ہے، کسی کی نہیں ہے، نہ تو مسلمانوں کی زبان ہے، ہماری اپنی زبان ہے. میں بند ملاحظہ فرمائیے کرتی ہوں. بھاشائیں بھی ہوئی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار، بھاشائیں بھی ہوئی سیاسی غنڈوں کا ہتھیار. تلسی میر کبیر کی قیمت 2 پیسے میں 4، تلسی میر کبیر کی قیمت 2 پیسے میں 4. فٹ پاتھوں پر بھٹک رہے ہیں
غالب اور رس خان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان۔ اور اگلا بند، بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائیں، سرکار کسی کی بھی ہو، عرض کرتی ہوں، بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائیں، پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں، پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائیں، چور اچکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سمان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان۔ اگلا بند اور سناتی ہوں، سمبل پٹیکوں کے مادھیم سے بات کرتی ہوں۔ رنگوں کو آپ جانتے ہیں کہ پیلا رنگ کس کا ہے اور ہرا رنگ کس کا ہے۔ انجم کا یہ بند سماعت فرمائیے۔ پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا سنو، پھولوں جیسے، ہم نئی نسل کو کیا دینا چاہتے ہیں، پھولوں جیسے ہونٹوں پر بھی زہر بھری نفرت ہے، بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے، بجلی کے کھمبوں پر پیلی اور ہری نفرت ہے، لال رنگ میں ڈوب گئے ہیں سب کھادی کے تھان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان۔ اور دیکھیے گا آخر بند، بھوپال رہتی ہوں، سماعت فرمائیے گا، بلکہ یوں کہوں کہ پورے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، عرض کرتی ہوں، سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں، اگر ایسے لوگ ہیں تو مجھے معاف فرمائیں، سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن کہنا چاہیے، سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں، کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں، کیسا مندر کیسی مسجد سب ان کے دھندے ہیں، ٹھوکر میں ایمان ہے ان کی جیبوں میں بھگوان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان۔ اور آخر بند، اپنے نوجوان بھائیوں کو نص کرتی ہوں، بزرگوں کو سب کو نص کرنا چاہتی ہوں، حالات کہاں سے کہاں آ گئے، عرض کرتی ہوں، نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، یہی تو ہو گیا سب کچھ، ہم اتنے بےحس ہو گئے، نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، جو بے روزگاری، نوجوان بھائیو سنو، نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل، نوٹوں کی پٹری پر چلتی ہے ووٹوں کی ریل، بی اے پاس ملے چپراسی منتری چوتھی فیل، دیواروں پر یہاں لکھا ہے سمے بڑا بلوان، یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان، یہ تمہیں خبر نہیں تنویر اہل محفل کو یہ انتظار کے پل بے قرار کرتے ہیں، اب ان کے صبر کا تم اور امتحان نہ لو، چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ کہ سب انتظار کرتے ہیں۔ جناب تنویر غازی علیہ سادہ سا مطلع آپ کی بڑی سماعتوں کے حوالے عرض کیا ہے دوستوں کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شورائے کرام کو کہا ہے دوستوں کہ میرے اکیلے اداس گھر میں، میرے اکیلے اداس گھر میں، میرے اکیلے اداس گھر میں وفا کی خوشبو لٹانے آئے، واہ واہ، میرے اکیلے اداس گھر میں وفا کی خوشبو، سنیں حضرات تمام حضرات شریک ہوں کہ میرے اکیلے اداس گھر میں، میرے اکیلے اداس گھر میں وفا کی خوشبو لٹانے آئے، میں روز زخمی ہوا کروں گا اگر وہ مرہم لگانے آئے۔
क्या कह मेरे अकेले उदास घर में वफा की खुशबू लुटाने आए, वफा की खुशबू लुटाने आए। मैं रोज जख्मी हुआ करूंगा, मैं रोज जख्मी हुआ करूंगा, मैं रोज जख्मी हुआ करूंगा अगर वो मरहम लगाने आए। अच्छे से सुने हजरात, एक मतलब पेश करता हूं कि हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी जुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। वाह 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 भाई तनवीर, क्या हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी जुबान हो, तू कोई भी जुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। डॉक्टर साहब, इस शेर पे आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक शेर पढ़ रहा हूं कि तू कोई भी जुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। वाह वाह, तू कोई भी जुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। वाह वाह वाह, मैं तेरे गाल से, जी शुक्रिया शुक्रिया, मैं तेरे, इसी तरह सुनते रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप मुशायरा, कि मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। सुने कि चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा। चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा, नौकरी करने लगा। उसके दरवाजे के बाहर रोशनी करने लगा। बहुत अच्छे, शुक्रिया हजरत, कि चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा, उसके दरवाजे के बाहर रोशनी करने लगा। शेर सुने, एक शेर पढ़ रहा हूं, धीरे से, कुछ सेकंड बाद समझ में आता है, लेकिन अगर आपकी समझ में आ जाए तो मुझे बताएं कि आप शेर तक पहुंचे हैं। कि चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा, उसके दरवाजे के बाहर रोशनी करने लगा, उसके दरवाजे के बाहर रोशनी करने लगा। बाल खोले नर्म सोफे पर पड़ी थी एक परी। चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा, उसके दरवाजे के बाहर रोशनी करने लगा। बाल खोले नर्म सोफे पर पड़ी थी एक परी। मेरे अंदर एक फरिश्ता खुदकुशी करने लगा। क्या कहने, बाल खोले नर्म सोफे पर पड़ी थी एक परी। बाल खोले नर्म सोफे पर पड़ी थी एक परी। मेरे अंदर एक फरिश्ता खुदकुशी करने लगा। मेरे अंदर एक फरिश्ता खुदकुशी करने लगा, खुदकुशी करने लगा। देखें हजरा, शेर, एक मतलब एक शेर के उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया। उसने हसीन आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया। क्या कहने, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया। मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। वाह 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 वाह, और देखिए शेर के, दुनिया की फिक्र घुल गई उसके ख्याल में। वाह वाह, दुनिया की फिक्र घुल गई उसके ख्याल में, जैसे किसी ने धूल मिला दी गुलाल में। वाह, जैसे किसी ने धूल मिला दी गुलाल में, जैसे किसी ने धूल मिला दी गुलाल में। जर्रे थे हम तो खूब फिरे खुशबुओं के साथ। ये शेर सुने सब। जर्रे थे हम तो खूब फिरे खुशबुओं के साथ, जुगनू बने तो फंस गए मकड़ी के जाल में। वाह 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 वाह, जर्रे थे हम तो खूब फिरे खुशबुओं के बहुत साथ। जर्रे थे हम तो खूब फिरे खुशबुओं के अच्छा साथ। है तनवीर, वाह 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 वाह, जर्रे बहुत थे हम तो खूब फिरे खुशबुओं के साथ। जुगनू बने तो फंस गए मकड़ी के जाल में, जुगनू बने तो फंस गए। और देखिए, सियासत के टॉपिक पर कई शेर पढ़े गए। मैं एक 4 लाइन पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे तरीके से मैंने शेर कहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपकी बात कही तो मेरे साथ जितने लोग हैं शरीकों, कहा है कि एक अकेले सफेद कपड़े में, एक अकेले सफेद कपड़े में हर बुराई छुपाई जाएगी। क्या कह रहे हैं, अब तो चरखे को शर्म आती है, मुझसे खादी बनाई जाएगी। वाह 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 वाह, एक अकेले सफेद कपड़े में, क्या कह रहे हैं, एक अकेले सफेद कपड़े में हर बुराई छुपाई जाएगी।
अब तो चरखे को शर्म आती है, अब तो चरखे को शर्म आती है, मुझसे खादी बनाई जाएगी, अब तो चरखे को शर्म आती है। देखिए हजरात, कौमी एकता का एक शेर पढ़ रहा हूं, लेकिन इस तरह भी कहा जा सकता है कौमी एकता का शेर। मैंने कहा है कि तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा, तमाम शहर को लंका बनाया जाएगा, जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा, जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारो कि वो कपास है हम, जरा सी बहस को दंगा बनाया जाएगा। हमें जलाओ ना यारो कि वो कपास है हम, जिसे मिला के तिरंगा बनाया जाएगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे। जिसे और देखिए शेर के सियासी साबुन से अपने कपड़े उजालने में लगा हुआ है, सियासी साबुन से अपने कपड़े उजालने में लगा हुआ है, सियासी साबुन से अपने कपड़े उजालने में लगा हुआ है। वो कम नजर दूसरों पे कीचड़ उछालने में लगा हुआ है। वाह वाह। सियासी साबुन से अपने कपड़े उजालने में लगा हुआ है, सियासी साबुन से अपने कपड़े उजालने में लगा हुआ है। वो कम नजर दूसरों पे कीचड़ उछालने में लगा हुआ है। चलो हम ही चल के अब ये गिरता हुआ तिरंगा संभालते हैं। क्या कहते हैं? सियासी साबुन से अपने कपड़े उजालने में लगा हुआ है, वो कम नजर दूसरों पे कीचड़ उछालने में लगा हुआ है। चलो हम ही चल के अब ये गिरता हुआ तिरंगा संभालते हैं। हमारा सेनापति तो धोती संभालने में लगा हुआ है। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबियिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हुए इंसान सब सोज़े मोहब्बत के लिए पैदा हुए इंसान सब सोज़े
पैदा फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं ETV खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल सनीचर को दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से लेंगे हलफ। रामलीला मैदान पर होगी हलफ बर्दारी तकरीब। आप की हुकूमत 15 रोज में लोकपाल बिल पेश करेगी असेंबली में, योगेंद्र यादव का बयान। आप रुकने असेंबली विनोद कुमार बिन्नी भड़के मीडिया पर, नाराजगी के बारे में अफवाहें फैलाने का लगाया इल्जाम। गुजरात में लड़की की जासूसी के मामले में नया मोड़। गुजरात पुलिस ने कर्नाटक में भी इसकी जासूसी कराने की थी कोशिश। और फौज ने कश्मीर के मछल फर्जी इनकाउंटर में 6 जवानों को ठहराया मुलजिम, कोर्ट मार्शल का दिया हुक्म। और दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, हिंदुस्तान में भी रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है त्योहार। और खबर तफसील से। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आइंदा सनीचर को दिल्ली के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। 45 साला अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी के दीगर 6 अरकान असेंबली के साथ ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। सनीचर को 12 बजे होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में समाजी रहनुमा अन्ना हजारे, किरण बेदी और संतोष हेगड़े को मदऊ किया गया है। अट्ठाईस तारीख को 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आम आदमी पार्टी की ओर से केवल 3 वरिष्ठ साथियों को, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सहयोग इस राजनीतिक जन आंदोलन के साथ रहा है प्रारंभ से, आदरणीय श्री अन्ना हजारे जी, हमारी बड़ी बहन किरण बेदी जी और हमारे वरिष्ठ साथी श्री संतोष हेगड़े जी के लिए निवेदन किया गया कि नामंत्रित। Kejriwal that they put behind bars. Now they are all trying to, protect you, even if they say no. उनकी नौकरी नेचुरली तिथि के पहले कैसे इनवाइट करें उनको? तिथि होगी तभी। और आइए इस मामले पर मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली में हमारे ब्यूरो चीफ अशीत कुणाल। अशीत, आखिरकार केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं वहां? देखिए, एकदम जो हमारे पास जानकारी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है उपराज्यपाल को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि जो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था उससे संबंधित रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट हाउस को भेजी थी। हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट हाउस से फॉर्मल अप्रूवल मिल गया हुआ है, तो कहीं न कहीं जो रास्ता है वो साफ हो गया हुआ है अब अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने का और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का। दिल्ली में हमारी जो जानकारी है कि अब शनिवार को 28 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, क्योंकि अब काफी कम समय रह गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि 26 दिसंबर को ही यानी कल शपथ ग्रहण समारोह हो, मगर चूंकि जो फॉर्मेलिटीज हैं, चूंकि इसमें बहुत सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं, होम मिनिस्ट्री की तरफ से
یہ جو